Hello everyone. Let's continue Riya's journey in this video. Yes, it's our chapter number 7. Riya's train got late. It's 29th May and time is 5 o'clock. I woke up. Our train halted at some platform. I sat and looked outside from the window. There was a clock hanging on the wall. It was 5 o'clock in the morning. Besides it, on the pillar Vadodara Junction was written in the circle board. My brother was still sleeping. Here you can see the clock. It's 5 o'clock in the morning. मैं जग गई. हमारी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी. मैंने बैठ के खिड़की में से झांका तो सामने वाली दीवार की घड़ी में सुबह के कितने बजे थे? 5 बजे थे. मतलब कि घड़ी 5 बजे का टाइम दिखा रही थी. उसके पास में एक खंबे पे गोल पट्टी पे वडोदरा जंक्शन लिखा हुआ था. मेरा भाई अभी भी सो रहा था. There was an instruction on mic that the trains running between Vadodara, Surat, Valsad, Vapi, Mumbai will be 2 hours late. Father said, brush your teeth. Meanwhile, I am getting tea for you. We completed all morning activities. At that time, father came with tea and mother took out thepla, khakra and biscuits for breakfast. When we completed our breakfast, it was daytime. माइक में अनाउंसमेंट हो रही थी, मतलब कि इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी. क्या थी वो इंस्ट्रक्शन? कि वडोदरा से सूरत, वलसाड़, वापी, मुंबई की ओर जाने वाली और आने वाली सभी ट्रेनें 2 घंटे देरी से चलेगी. पापा ने कहा, अब ब्रश कर लीजिए, तब तक मैं चाय लेके आता हूँ. हमने सुबह का रूटीन ख़त्म किया. इतने में पापा चाय लेके आए और मम्मी ने थेपला, खाखरा और बिस्किट्स नाश्ते के लिए निकाले. हमने चाय नाश्ता किया. तब तक सवेरा हो चुका था. Still, there was time for the train to start. Father said, come, I will show you the facilities of the railway station. My brother and I got off from the train. अभी ट्रेन चलने में देरी थी तो पापा ने कहा, चलिए आपको रेलवे स्टेशन की सुविधाएं दिखाता हूँ. मैं और पापा मैं और मेरा भाई पापा के साथ ट्रेन में से नीचे गए. फादर showed us the facilities like ticket window, ticket checkers room, waiting room, parcel room, toilet bathroom, facility of drinking water, canteen, etc. on the platform. पापा ने हमें टिकट विंडो, टिकट चेकर रूम, प्रतीक्षा खंड मतलब कि वेटिंग हॉल, पार्सल रूम, टॉयलेट बाथरूम, पीने के पानी की सुविधाएं, चाय नाश्ते की कैंटीन वगैरह वगैरह जो सुविधाएं थी ना प्लेटफॉर्म पे, वो सब दिखाया. We saw many trains at the station from the bridge which was used for crossing one platform to another. We saw the railway staff pouring water from carriages and cleaning the train. Some sweepers were cleaning the railway tracks. We had no idea how time flew during our visit the station. I came to know more about railway facilities. Indeed, it was enjoyable. I took photographs and videos of some facilities from my father's mobile.
एक प्लेटफॉर्म पे से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सीढ़ी वाला जो पुल था ना, वहाँ से हमने देखा तो स्टेशन पे बहुत सारी ट्रेनें खड़ी हुई देखने को मिली। रेलवे वर्कर्स पाइप से ट्रेन के डिब्बे में पानी भरते हुए और ट्रेन की सफाई करते हुए नजर आए। कई वर्कर्स मीन्स सफाई वर्कर्स ट्रेन के चारों ओर की मीन्स ट्रैक के चारों ओर की सफाई करते हुए भी नजर आए। स्टेशन पे घूमने में समय कहाँ बीत गया कि कुछ पता ही न चला। मुझे रेलवे की सुविधाओं के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली। सच में बहुत ही मज़ा आया। मैंने कई सुविधाओं के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ पापा के मोबाइल में लिए हैं। थिंक वाई वुड रियाज ट्रेन बी 2 hours लेट फ्रॉम वडोदरा। मीन्स सोचिए कि रिया की ट्रेन थी ना, वो वडोदरा स्टेशन से 2 घंटे लेट क्यों चली होगी। आपको सोचना है और यहाँ पे बताना है। वी कैन गेस द रीजन्स लाइक दिस। मे बी द रेल ट्रैक्स बिटवीन वडोदरा एंड मुंबई may be under repair. The train might not have got the signal to move forward. Some train between Vadodara and Mumbai may be in some difficulty, or there may have been an accident, so there was a train on the tracks. Maybe all the trains had been late by 2 hours from early morning. We can guess like this. Now this question. Which places did Riya visit at the station? Means रिया ने स्टेशन पे कौन कौन सी प्लेसेस देखी, विजिट की, और रिया ने स्टेशन पे कौन कौन सी जगह देखी, उसका आंसर देना है। लेट्स आंसर। रिया विजिटेड द टिकट विंडो, द टिकट चेकर्स रूम, द वेटिंग रूम, द पार्सल रूम, द फैसिलिटीज ऑफ टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स, facility of drinking water and canteen for tea and refreshments, okay, and a staircase bridge to go from one platform to other. एक प्लेटफॉर्म पे से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए ब्रिज तो होता है ना, वही तो ये सारी जगह रिया ने देखी। Now on 29th May at 7 AM, okay. Now there was an instruction on mic that our train would leave Vadodara within 2 minutes. We got into our carriage. Train started. It was morning. Atmosphere was very beautiful outside. अभी 7 बजे थे। क्या हुआ? माइक में इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी कि हमारी ट्रेन 2 मिनट में वडोदरा स्टेशन से चलेगी। तो हम वापस अपने डिब्बे में जाकर बैठ गए। ट्रेन चली। सुबह हो चुकी थी और बाहर का जो नज़ारा था ना, वो भी बहुत ही सुंदर दिख रहा था। Our train was passing level crossing where people were waiting on both the sides of crossing of the train to pass. Their buses, cars, auto rickshaws, cycle, scooter and goods trucks etc. vehicles were waiting. Some people did not switch off the engine of their vehicle. Due to this, there was a lot of smoke and noise in the atmosphere. Some people were crossing below the bars of the level crossing and stood near it. How dangerous it is! हमारी ट्रेन सड़क मार्ग के बंद गेट पर से गुजर रही थी। अभी यहाँ पे क्या होता है, जो रेलवे ट्रैक होती है और जो सड़क मार्ग का जो रास्ता होता है वो क्रॉस होता है। तो रेलवे ट्रैक पर से ट्रेन को जाने के लिए क्या करना पड़ता है, सड़क मार्ग बंद करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन थी। तो वहाँ पर लोग दोनों तरफ ट्रेन के गुजर जाने की प्रतीक्षा करके खड़े थे कि कब ट्रेन चली जाए और फाटक खुले मीन्स गेट खुले ताकि वे लोग जा सके। वहीं पे बस, कार, ऑटो रिक्शा, साइकिल, स्कूटर और गुड्स ट्रेन जैसे भारी वाहन भी खड़े थे। कई लोग अपने वाहन मीन्स व्हीकल्स बंद किए बिना ही खड़े थे। इंजन चल रहा था मतलब, इसलिए वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो नॉइजी और धुआं था। कई लोग गेट के नीचे जो जगह होती है ना, वहाँ से होकर ट्रैक के नज़दीक आकर खड़े हो गए थे।
वह सच में हानिकारक था। इट इज़ डेंजरस। ओके, एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो जब तक ट्रेन नहीं चली जाती तब तक हमें वेट करना चाहिए। इंस्ट्रक्शन होती है ना, दुर्घटना से देरी भली। तो यहाँ क्या होता है, जब भी कोई ट्रेन क्रॉस होती है तो सड़क मार्ग बंद किया जाता है और व्हीकल्स को वेट करना पड़ता है। जब ट्रेन पास हो जाती है तभी वो गेट खुलता है और हम मतलब कि सड़क मार्ग वाले जा सकते हैं। तो हमें भी ये रूल फॉलो करने हैं कि जब तक ट्रेन चली ना जाए हम वेट करेंगे, रिस्क नहीं लेना है। ओके, इट इज़ गुड फॉर आवर लाइव्स। See here, you can see the picture, right? The gate is closed and vehicles are waiting. So we have to follow that rule that जब तक की ट्रेन पास नहीं होती है हम वेट करेंगे। At the same time, our train crossed another train. Himax and I tried to count the carriages of one such train, but both trains were going very fast. So we could not count the carriages. उसी वक्त हमारी ट्रेन के पास से एक और ट्रेन पास हुई। मैंने और हिमाक्स ने वह ट्रेन के डिब्बे गिनने का प्रयत्न किया। डिब्बे मीन्स करेजिस मीन्स बोगीज, लेकिन दोनों ट्रेनें तेजी से चल रही थी, इसलिए करेजिस डिब्बे गिन नहीं पाए। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन। डिड यू एवर पास फ्रॉम द रेलवे क्रॉसिंग? इफ यस, think and write the situation you faced when the railway crossing was closed and when it opened. यहाँ पे क्या करना है आपको, क्या आप कभी रेलवे फाटक पे से मीन्स क्रॉसिंग पे से पास हुए हैं? अगर हाँ, तो जब वो गेट बंद था तब और खुलने के बाद का वहाँ का जो नज़ारा होता है ना, वो आपको यहाँ पे बताना है, लिखना है। ओके, सो दिस आंसर यू हैव टू राइट योरसेल्फ। Now this question, what did Riya see at the crossing? Means रिया ने क्रॉसिंग के पास क्या क्या देखा वो हमें यहाँ पे बताना है। Riya saw that people were waiting to cross over to the other side on both sides of the gate. Vehicles like buses, cars, auto rickshaws, bicycles, scooters and trucks loaded with goods etc. were waiting at the crossing. Many people were waiting without switching off their vehicles. So the atmosphere around the crossing was full of loud noises and smoke. Many people were going under the bars of the level crossing to go and stand near the railway tracks. Later, I was sitting near the windows with my eyes closed. Suddenly, the sound of the moving train changed. Khud, khud, khud. I opened my eyes. Guess what I saw? My train was crossing over a big river on a very long bridge. Mother said, it is a bridge of Narmada River. This is the biggest river of Gujarat. Its water is given to far away areas through canal. मैं आंख बंद करके खिड़की के पास बैठी थी। अचानक से क्या हुआ, ट्रेन की जो चलने की आवाज़ थी ना, वो चेंज हो गई थी। कैसी आवाज़ आ रही थी अभी? खड़ खड़ खड़। मैंने अपनी आंखें खोली। अभी यहाँ पे गेस कीजिए मैंने क्या देखा होगा? यस, इट वॉज रिवर ब्रिज। मेरी ट्रेन एक बड़ी नदी पर जो पुल था उस पे से गुजर रही थी। मम्मी ने कहा ये नर्मदा नदी पर का पुल है। ये नदी गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। उसका पानी कैनाल से दूर दूर तक के एरिया में पहुंचाया गया है। Here you can see the picture of नर्मदा रिवर एंड ब्रिज, राइट। अभी सड़क मार्ग और रेल मार्ग पे ये ब्रिज क्यों बनाए जाते हैं, क्या आपको पता है? क्योंकि इससे समय बचता है। कैसे कि हम ब्रिज पे से इजीली एक प्लेस पे से दूसरी प्लेस पे जा सकते हैं। अगर ये ब्रिजेस नहीं होते तो हमें घूम घूम के जाना पड़ता है, टाइम भी लगता है और कई बार तो बीच में ऐसा रास्ता आता है कि हम क्रॉस भी नहीं कर सकते। तो इट इज़ द बेस्ट वे टू क्रॉस द रोडवे और रेलवे मीन्स की वाटर वे। आफ्टर अ वाइल
Another two bridges were seen. Small vehicles were passing through it. Father said, "The first bridge is called Golden Bridge. It is a very old and strong bridge. The another bridge beside it is built over river Narmada. It is known as the biggest cable bridge of India." You can see the picture, it is Golden Bridge and beside it the other bridge. थोड़ा आगे दूसरे दो पुल भी दिखाई दे रहे थे, उस पर से छोटे बड़े व्हीकल्स गुजर रहे थे। पापा ने कहा कि जो पहला पुल दिख रहा है वो गोल्डन ब्रिज से जाना जाता है मीन्स वह बहुत पुराना और स्ट्रॉन्ग पुल है। यू कैन सी हियर इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ओल्ड। और उसके आगे वाला जो पुल है वह नर्मदा नदी पे जो नया पुल बनाया गया है वह भारत का सबसे बड़ा केबल ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यू कैन सी द पिक्चर हियर, इट इज़ नोन एज द केबल ब्रिज। ओके, एंड दिस इज द गोल्डन ब्रिज। सो इट इज नोन एज द बिगेस्ट केबल ब्रिज ऑफ इंडिया। Though it is summer, the river was full of water. Some fishermen were seen spreading net, sailing in their boat. The bridge was long, so we enjoyed watching surroundings. समर के बावजूद भी नदी में बहुत सारा पानी था। कई फिशरमैन बोट में नेट बिछा के मछली पकड़ने के लिए बैठे हुए दिखाई दिए। लंबा पुल था इसलिए ये सब देखने में बहुत मज़ा आया। Father said, "Our train passed through the bridges of Sabarmati, Vatrak, Maisagar and Viswamitri while you both were sleeping. Now, bridge of Tapi River near Surat will come. Don't miss to see it." पापा ने बताया कि रात में जब हम सो रहे थे तब हमारी ट्रेन साबरमती, वात्रक, महिसागर और विश्वामित्री जैसी बड़ी बड़ी नदियाँ के पुल पर से गुजरी थी। अभी आगे सूरत के पास तापी नदी का पुल आएगा, वह देखना चूक मत जाना। It was delightful to see the scene outside the windows. Fields full of green crops were visible near riverbank area. In some field, there was farming of bananas. Green trees are seen all around. The breeze was very cool. बाहरी दृश्य देखने में बहुत ही मज़ा आया। नदी के चारों ओर के एरिया में हरी फसलें वाले खेत देखने को मिले। कई खेतों में केले की फसल देखने को मिली। चारों ओर हरे हरे पेड़ भी देखने को मिले। बहुत ठंड हवा भी चल रही थी, मीन्स ब्रीजिंग एयर चल रही थी। I had never experienced this type of cool breeze in Gandhidham. We were busy in observing the scenes when Mama's call on my mother's mobile. He was coming to the railway station to pick us up. So my mother told that our train was 2 hours late and we will reach at 10:25 instead of 8:25. ऐसी ठंड हवा का एहसास गांधीधाम में कभी नहीं हुआ है। हम बाहरी नज़ारा देखने में व्यस्त थे, तभी मम्मी के मोबाइल पे मामा का कॉल आया कि वे हमें रेलवे स्टेशन पे लेने आएंगे, मीन्स वो लेने आने वाले थे, इसलिए उन्होंने कॉल किया। इसलिए मम्मी ने बताया कि हमारी ट्रेन 2 घंटे देरी से चल रही है, इसलिए हम 8:25 की जगह कब पहुँचेंगे? 10:25 को पहुँचेंगे। नाउ सी द क्वेश्चन, हैव यू सीन एनी ब्रिज? विच? क्या आपने कोई ब्रिज देखा है? अगर हाँ तो कौन सा, वो यहाँ पे बताना है। दिस क्वेश्चन, which rivers are there in your area? Think and write.
over that river at which places the bridge has been built. मीन्स यहाँ पे आपके एरिया में, इलाके में कौन कौन सी नदियाँ आई हुई हैं वो बताना है, और वे नदियों पे कौन कौन सी जगह पे पुल बंधे हुए हैं वो भी बताना है. दिस क्वेश्चन, थिंक एंड राइट, व्हाई शुड अ ब्रिज बी बिल्ट ओवर रिवर. सोचिए कि नदी पे पुल बनाने की जरूरत क्यों होती है. बिकॉज it is the easiest and shortest way to reach one place to another. Means people can travel from one place to another. To make travel easy for people at all times, we can say bridges are built over rivers. Have you ever crossed a bridge? Where? क्या आप कभी कोई पुल पे से, ब्रिज पे से पास हुए हैं, गुजरे हैं? अगर हाँ तो कहाँ, वो आपको यहाँ बताना है. नाउ दिस क्वेश्चन, व्हाट डिड यू सी अराउंड द ब्रिज. आपने पुल के आसपास मीन्स चारों ओर क्या देखा वो यहाँ पे बताना है. दिस क्वेश्चन, From which river's bridge did Riya's train pass? ओके, रिया की जो ट्रेन थी ना वो कौन कौन सी नदियों के पुल पर से गुजरी थी वो यहाँ पे हमें बताना है. कैन यू से चिल्ड्रन, कौन कौन सी नदियों पे से गुजरी थी ब्रिज पे से? यस, नर्मदा, साबरमती, वात्रक, महिसागर, विश्वामित्री एंड तापी. ओके. Now it's 9 o'clock. You can see the clock. Our train was passing through one big city. On the way, there were many bridges of roadways. On both sides of railway tracks, big buildings and markets were seen. Father said that it is Surat city. This city is famous for its diamond business and textile business in the whole world. This is the second big city of Gujarat after Ahmedabad. Train stopped when station came. अभी 9 o'clock हुए थे और हमारी ट्रेन एक बड़े शहर के बीच से गुजर रही थी. रास्ते में बड़े बड़े सड़क मार्ग के पुल भी आते थे. रेलवे मार्ग की दोनों ओर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बाजार दिखते थे. पापा ने कहा कि ये सूरत शहर है. ये शहर डायमंड और टेक्सटाइल बिजनेस के लिए विश्व में फेमस है, जाना जाता है. अहमदाबाद के बाद गुजरात का यह दूसरे नंबर का बड़ा शहर है. स्टेशन आते ही ट्रेन खड़ी रही. Many passengers were moving on the platform. Here, somewhere, people wearing different dresses were seen. Some women had worn sari like dhoti, while some men had draped white dhoti like lungi. Some people's language was also different. प्लेटफॉर्म पर पैसेंजर्स के आवन जावन बहुत ही थी. यहाँ पे क्या था कि कई अलग ड्रेसेस वाले, पहनावे वाले लोग भी देखने को मिले. कई औरतों ने धोती टाइप साड़ी पहनी थी तो कई पुरुषों ने लुंगी के जैसे सफ़ेद धोती पहनी थी. कई लोगों की तो भाषा मीन्स बोली जो बोलते हैं ना, लैंग्वेज भी अलग अलग थी. मीन्स सभी का पहनावा और लैंग्वेज में विविधता थी. वैसे कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी. यस, इंडिया में सभी स्टेट और रीजन में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं और सभी की लाइफस्टाइल, लैंग्वेज, फूड, सभी पहनावा सब भी डिफरेंट है. सभी अलग अलग अपने हिसाब से अपनी बोली बोलते हैं, राइट. सो लाइक दैट, अकॉर्डिंग टू दैट डाइवर्सिटी, पीपल आर मूविंग हियर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑल्सो. Father said, people of different states have settled here for business.
So here people wearing different dresses have been seen. Father bought Suttarfeni and Ghari, which are famous sweets of Surat. The train halted for 5 minutes and then moved. पापा ने कहा कि यहाँ पे देश के अलग अलग राज्य से लोग नौकरी धंधा और बेरोजगार मीन्स रोजगारी के लिए आते हैं और यहाँ पे सेटल स्थायी हुए हैं, इसलिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पहनावे वाले लोग देखने को मिलते हैं। पापा सुतरफेनी और घारी लेके आए जो कि सूरत की फेमस स्वीट है। ट्रेन यहाँ पर 5 मिनट रुकने के बाद चली। Father said Vapi would come soon after Navsari and Valsad. We would reach Vapi within an hour. पापा ने कहा कि अब नवसारी और वलसाड़ के बाद तुरंत वापी स्टेशन आएगा। हमको अभी वापी पहुंचने में 1 घंटे जैसा लगेगा। Mother informed Mama by phone that our train would reach Vapi within an hour. मम्मी ने मामा को कॉल पे बताया कि हमारी ट्रेन 1 घंटे में वापी पहुंचेगी। Himax and I were happy to reach at Mama's home. Our train was going to reach Vapi, where we have to got down. मुझे और हिमाक्स को मामा के घर पहुंचने की खुशी थी। हमारी ट्रेन अभी वापी पहुंचने ही वाली थी, जहां पे हमको उतरना था। Mama called that they had reached the station to pick us up. Our journey was long, but Himax and I enjoyed a lot. मामा का फ़ोन भी आ गया कि वे हमें लेने स्टेशन पहुंच गए हैं। हमारी ट्रैवलिंग लंबी थी, पर मुझे और हिमाक्स को बहुत ही मज़ा आया। Now I penning up my diary. I shall write rest of the diary after reaching at Mama's home. मैं अपनी डायरी लिखना बंद करती हूँ। मामा के घर पहुँच के बाकी का लिखूंगी। Now this question, which cities have you seen? What do you see there? Think and write. आपने कौन कौन से शहर देखे हैं? वहाँ पे आपने क्या क्या देखा? वह सोचिए एंड लिखिए। Now this question, which kinds of dresses wearing people you seen? Think and write. आपने किस किस प्रकार के पहनावे के लोग देखे हैं? सोच के बताना है यहाँ पे, ओके आपको। Which different language speaking people have you heard except Gujarati? आपने गुजराती के अलावा कौन कौन सी बोली मीन्स लैंग्वेज बोलते हुए लोग सुने हैं, वो यहाँ पे बताना है। From which stations did Riya's train pass? यहाँ पे बताना है कि रिया की ट्रेन कौन कौन से स्टेशन पे से गुजरी थी। Riya's train passes through which station and it has not been mentioned here. Give the names of those stations from the timetable which is given on page number 62. यहाँ पे क्या करना है कि पेज नंबर 62 पे दिए गए टाइम टेबल पर रिया की ट्रेन जिस स्टेशन पे से गुजरी थी पर वहाँ पे बताया गया नहीं हो वैसे स्टेशन के नाम बताना है ऑन पेज नंबर 60। दिस इज द टाइम टेबल, इट इज ऑन पेज नंबर 62। यहाँ पे देख के हमें नाम बताने हैं, ओके। लिस्ट आउट द फेमस आइटम्स और थिंग्स ऑफ योर एरिया, विलेज और सिटी। फॉर एग्जाम्पल लाइक घरी ऑफ सूरत, पटोलाज ऑफ पाटन। यहाँ क्या करना है आपको कि आपके आसपास के इलाके में, गांव में और शहर में जो कि फेमस चीज़ें हैं ना, उसका
लिस्ट बनाना है, यहाँ बताना है. एग्जाम्पल दिए है सूरत की घारी और पाटन के पटोले. ओके. How are water and electricity supplied in the train carriage? Discuss. मीन्स ट्रेन के डिब्बे में वाटर मीन्स पानी और इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है वो बताना है यहाँ पे. Imagine that you are going for a long journey. Which things will you carry with you to pass your time? गेस कीजिए, अगर आप ट्रेन की लंबी ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तो टाइम पास के लिए कौन कौन सी चीज साथ में लेंगे. ओके. नाउ recognize the people given below in the pictures and write their names. What work do they do? Pictures are given here. We have to identify them, the helpers, our helpers or workers, and we have to write their names. और पहचानना है और उसके नेम लिखने हैं. ओके. क्या काम करते वो बताना है. So have a look here. Number 1. Who is he? Yes. He is a porter. What he does? It is a porter carries passengers luggage, right? Now number 2, he is a guard. Travels in the last special coach of the train. He shows the green flag or signals with a green light for the train to move on. He is the train in charge. Okay, guard. Number 3, who is he? Engine driver. He drives the train. Number 4, ticket checker. What he does, checks passenger tickets and confirm them. Okay, and fines and punishes the passengers that traveling without a ticket. Railway police protects the railway and the passengers. Number 6, who is he? Sweeper or cleaner. Keeps the railway platform and the train clean. And number 7, ticket vendor sells tickets for all types of train journey and platform tickets. So dear children, these are our helpers of railway facilities. They help us in traveling and maintain the discipline in the railway facilities. So in this chapter we have come to know about the facilities for passengers on railway stations. Thank you and have a nice day.